Hello students, in today's lecture we will be studying about time division switching. But before I take up division switching in detail, we should know about the basic principle of time division switching. Now, what is the principle onto which this time division switching is based? To know about that, let us have a small recap. हमने क्लासिफिकेशन ऑफ स्विचिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था और आपने उसमें पढ़ा है कि जो स्विचिंग स्कीम इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सिस्टम्स में यूज़ होती है दैट इज़ आइदर स्पेस डिवीजन स्विचिंग और टाइम डिवीजन स्विचिंग, है ना। अगर आपको याद हो तो हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सिस्टम्स में भी आइदर स्पेस डिवीजन स्विचिंग बेस्ड और टाइम डिवीजन स्विचिंग बेस्ड। अब स्पेस डिवीजन स्विचिंग में क्या होता है? स्पेस डिवीजन स्विचिंग में a dedicated path is established in between the calling and the called subscriber. डेडिकेटेड पाथ मतलब एक ऐसा पाथ जो उनको ही दिया जाता है और कोई उसको यूज़ नहीं करता। और स्पेस डिवीजन स्विचिंग सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो दे कैन बी सिंगल स्टेज, दे कैन बी मल्टी स्टेज। एक स्टेज के या बहुत सारी स्टेजेस के नेटवर्क्स हो सकते हैं। In single stage space division networks, a cross-point switching element is used to establish a specific connection between two subscriber. एक switching element होगा जिसे हम cross point switching element कहते हैं और उसका यूज़ करते हैं किसी भी एक specific connection को बनाने के लिए single space division network में। और multi stage space division networks में क्या होता है? Conversation could be established via any one of the many alternative paths. अब many alternative paths का मतलब बहुत सारे alternative paths available होते हैं और उनमें से कोई एक चूज करके हम अपनी conversation को establish कर सकते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में इसको कहने की कोशिश करें, what does that mean? It means that a cross point is usable for establishing more than one connection. जैसे सिंगल स्टेज में क्रॉस पॉइंट एक स्पेसिफिक कनेक्शन के लिए यूज होता है, मल्टी स्टेज में एक क्रॉस पॉइंट एक स्पेसिफिक के लिए नहीं मगर बहुत सारे कनेक्शंस के लिए यूज हो सकता है। दैट मीन्स हम उसको शेयर कर सकते हैं। इट इज शेयरेबल अमंग मैनी सब्सक्राइबर। और इस शेयरिंग से क्या एडवांटेज है? इट लीड्स टू द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ स्विचिंग एलिमेंट्स रिक्वायर्ड। डेडिकेटेड नहीं है, शेयर हो रहा है तो जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। A switching element once allotted remains dedicated to a connection for its entire duration. अब हमारे पास स्विचिंग एलिमेंट्स हैं, हम उसको बहुत सारे कनेक्शंस के बीच में शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक कनेक्शन के लिए एक स्पेसिफिक क्रॉस पॉइंट स्विचिंग एलिमेंट है। बट अगर एक बार हमने वो क्रॉस पॉइंट स्विचिंग एलिमेंट किसी एक कनेक्शन को दे दिया तो वो स्विचिंग एलिमेंट वही कनेक्शन पूरी कॉल के लिए यूज करेगा। That remains dedicated to the connection for the entire duration of the call. So as a result, sharing of a cross point occurs from one connection to the next. At a time, one cross point is dedicated to one active speech circuit. अब हमने सिंगल स्टेज स्पेस डिवीजन नेटवर्क्स और मल्टी स्टेज स्पेस डिवीजन नेटवर्क्स का ये डिफरेंस पढ़ा। बट हमने ये भी पढ़ा कि क्रॉस पॉइंट शेयर होने के बावजूद भी हम उसको पूरी कॉन्वर्सेशन के लिए डेडिकेट करते हैं। हम उस कॉन्वर्सेशन में ऐसा नहीं होता कि जब एक पेयर के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रही है तो वो क्रॉस पॉइंट कोई और पेयर भी यूज़ कर ले। Why does not that happen? Because we are transmitting continuous analog speech waveform here. अब continuous signal है तो dedicated cross point चाहिए. That is why in space division switching a dedicated cross point is required. Although in single stage we use one specific cross point for one specific connection, whereas in multi-stage space division network the cross point is shareable. But once it is given to a connection, it remains dedicated to that particular connection for the entire duration of the call. Now that was space division switching. The other type of switching which was used in electronic exchanges was time division switching. Time division switching mein what are we doing? In time division switching, we are transmitting sampled values of speech signal. We are sampling the speech signal
और फिर हम फिक्स्ड इंटरवल में उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं। अब ये जो सैम्पल्स हम स्पीच के भेजते हैं, दे कैन बी ट्रांसमिटेड आइदर एज पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वैल्यूज और पल्स कोड मॉड्यूलेटेड बाइनरी वर्ड्स। दो तरह से हम इनको भेज सकते हैं। और सैम्पलिंग रेट यूजुअली स्पीच वेव फॉर्म का 8 किलोहर्ट्ज का होता है। तो अगर 8 किलोहर्ट्ज का सैम्पलिंग रेट है तो वो सैंपल 125 माइक्रोसेकेंड्स के बाद आकर करेगा। कैसे? हमारे पास फ्रीक्वेंसी 8 किलोहर्ट्ज है, टाइम निकालेंगे तो 1/f हो जाएगा, दैट कम 1/8 किलोहर्ट्ज करेंगे, दैट कम्स टू बी 125 microseconds. That means a sample value can be passed from an inlet to an outlet in a few microseconds or less. हमारे पास 125 माइक्रोसेकेंड्स का टाइम है इस सैंपल को इनलेट से आउटलेट तक भेजने के लिए स्विचिंग एलिमेंट के थ्रू। बट इस 125 माइक्रोसेकेंड सैम्पलिंग इंटरवल में जो आपका डेडिकेटेड स्विचिंग एलिमेंट है दैट रिमेन्स अनयूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। नियर अबाउट 5 माइक्रोसेकेंड अगर उसको सैंपल को लगे इनलेट से आउटलेट तक जाने के लिए, तो कितना टाइम बच गया जब तक वो फ्री है? 120 माइक्रोसेकेंड। अब हमारा मेन पर्पस है इस 125 माइक्रोसेकेंड्स में से 120 माइक्रोसेकेंड्स जो अनयूज जा रहा है उसको यूज करना। So if we are able to establish a dynamic control mechanism whereby a switching element can be assigned to a number of inlet outlet pairs for a few microseconds each. A single switching element can be used to transmit speech samples from a number of inlets to the corresponding outlets. We have 125 microseconds of the time and one sample takes 5 microseconds. Remaining 120 microseconds is unused. तो हम क्या करते हैं, इस 120 microseconds में इस क्रॉस पॉइंट को शेयर करते हैं बाकी कनेक्शंस के साथ, ताकि पहले 5 माइक्रोसेकंड में एक कनेक्शन भेजे, दूसरे 5 माइक्रोसेकंड में दूसरा कनेक्शन अपना सैंपल भेजे, तीसरे 5 माइक्रोसेकंड में तीसरा कनेक्शन अपना स्पीच सैंपल भेज दे। तो क्या होगा, ये क्रॉस पॉइंट एक कॉन्वर्सेशन के लिए डेडिकेटेड नहीं रहेगा, बल्कि बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस इस क्रॉस पॉइंट पे हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूस एनालॉग स्पीच सैंपल नहीं भेज रहे, कॉन्टिन्यूस एनालॉग स्पीच सिग्नल नहीं भेज रहे, हम सैंपल भेज रहे हैं। So what does that mean? A switching element is shared by a number of simultaneous active speech circuits. So instead of having one cross point which is dedicated to one conversation for the entire duration of the call, we are using a system in which one cross point is used by many conversations. And how are we able to do that? Point number one, we are able to do that because we are sampling speech here. Now, when we are sampling speech, I have told you before also that the sampling rate of the speech signal is somewhere around 8 kilohertz. With that, the sampling time occurs at 125 microseconds. We have 125 microseconds of the total time to transmit the sample, the speech sample from the input to the output. Now, out of this 125 microseconds of the time, only 5 microseconds is used by one sample to get transmitted from the input to the output, and remaining 120 microsecond remains free. So, we take samples from other conversations and transmit it during this 120 microseconds of the time, so that the switching element is used and there is increase in efficiency of the system which is being implemented. This system which we have discussed now, this is the basic principle of time division switching system. That means time division switching system जो है इस principle पे based है। कौन सा principle? जो कहता है कि 125 माइक्रोसेकेंड्स में जब हम सैंपल भेज रहे हैं, हम पाँच माइक्रोसेकेंड एक सैंपल को भेजने के लिए यूज होगा, तो बाकी टाइम हम बहुत सारे और सैंपल्स भेजने के लिए यूज कर सकते हैं फ्रॉम अदर कॉन्वर्सेशंस। अब इस तरह से जब स्विचिंग एलिमेंट्स आर शेयर्ड इन टाइम डिविजन स्विचिंग, much greater savings are achieved in terms of the number of switching elements, क्योंकि switching elements अब हमें कम यूज करने हैं, एक switching element को यूज करके बहुत सारी conversations को हम ट्रांसमिट कर पा रहे हैं। सो सिंगल स्टेज स्पेस डिविजन में हमने पढ़ा था कि क्रॉस पॉइंट डेडिकेटेड है और शेयर्ड नहीं होता। मल्टी स्टेज स्पेस डिविजन में पढ़ा कि डेडिकेटेड तो है बट वो हम शेयर कर सकते हैं। बट टाइम डिविजन में हमने क्या पढ़ा कि डेडिकेटेड नहीं है। तो number of switching elements which are required in time division switching schemes are much lesser as in comparison with the multi-stage space division switching system.
Now, coming to the basic time division space switching, the figure shows us the n cross n time division space switch. n cross n time division space switch का क्या मतलब है? हमारे पास यहाँ पर n inlets हैं और n outlets हैं. n inlets connected with n outlets through a common cross point which is the bus. इस नेटवर्क का अगर हम टू स्टेज नेटवर्क दिखाना चाहें तो वो ऐसा होगा. पहली स्टेज जिसमें n इनलेट्स हैं और 1 आउटलेट है. दूसरी स्टेज जिसमें 1 इनलेट है और n आउटलेट्स है. दैट मीन्स वी हैव टू स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज. पहली स्टेज has n inlets with 1 outlet, and this 1 outlet is the common interconnecting link, and the other one has 1 inlet and n outlets. So talking about the two stage equivalent, we have n cross 1 and 1 cross n switching matrices for the first and the second stage respectively. अब इस time division space switching में the speech can be carried as PM pulse amplitude modulated analog samples या PCM samples, pulse code modulated samples. और ये samples कितने टाइम में आकर होंगे? 125 माइक्रोसेकंड के इंटरवल में. When PM samples are switched, जब हमारे पास PM samples available हैं, तो type of time division switching को हम कहते हैं analog time division switching. ये हमने पहले भी पढ़ा. और अगर PCM samples हैं, it is known as digital time division switching. हमने पहले पढ़ा था कि एनालॉग टाइम डिवीजन का मतलब होता है, टाइम डिवीजन स्विचिंग का मतलब होता है कि हम जैसे सैंपल्स ले रहे हैं उनको ऐसे ही ट्रांसमिट करें. द वोल्टेज लेवल्स आर ट्रांसमिटेड एज सच. और डिजिटल टाइम डिवीजन स्विचिंग का मतलब होता है कि जब हम सैंपल लेते हैं उस वोल्टेज को बाइनरी कोड करते हैं और फिर हम बाइनरी कोड को ट्रांसमिट करते हैं. तो अगर हम पीएम सैंपल स्विच करें, द टाइप ऑफ स्विचिंग इज कॉल्ड एज एनालॉग टाइम डिवीजन स्विचिंग. और अगर हम PCM samples use करें, the type of switching is called as digital time division switching. अब यहाँ पर n inlets and n outlets are connected through a bus. So bus is the link which is connecting inlets to the outlet, right? And there is a suitable control mechanism which controls a specific inlet to the specific outlet. अब ये कंट्रोल मैकेनिज्म जो है पीएम सैंपल्स के लिए, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि जो हम बस यूज़ कर रहे हैं पीएम सैंपल्स के लिए, द नेचर ऑफ द बस वुड बी एनालॉग एंड फॉर पीसीएम सैंपल्स द बस वुड बी डिजिटल इन नेचर. अब किस तरह का कंट्रोल मैकेनिज्म होता है यहाँ पर? हमारे पास क्लॉक है, ये मॉड्यूलो एन काउंटर को अपडेट करती है. मॉड्यूलो एन काउंटर का काम है 1 से लेकर n तक का काउंट करना. मॉड्यूलो एन काउंटर 1 काउंट करता है. ये 1 k to 2 raised to the power k डिकोडर को दी जाती है. k to 2 raised to the power k डिकोडर का क्या काम है? इस काउंट को डिकोड करना. modulo n counter counts 1. It is given to the decoder. Decoder upon decoding comes to know that it is 1. तो क्या करता है ये डिकोडर? पहली इनलेट को क्लोज कर देता है. ये स्विच है, ये वाला स्विच, और ये इसको क्लोज कर देता है. जब ये k to 2 raised to the power k डिकोडर 1 स्विच को इनलेट के क्लोज करता है, यही सिग्नल आउटलेट को दिया जाता है और यहाँ से फर्स्ट आउटलेट क्लोज होती है. तो ये फर्स्ट आउटलेट भी बस के साथ कनेक्ट होगी, फर्स्ट इनलेट भी बस के साथ कनेक्ट होगी और यहाँ से आपकी कॉन्वर्सेशन एस्टैब्लिश हो गई. ठीक है, तो ये मैकेनिज्म यहाँ पर फॉलो किया जाता है. एंड द नंबर ऑफ साइमल्टेनियस कॉन्वर्सेशंस, एक साथ कितनी कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं हम, which can be supported on a network of this kind is equal to 125 upon TS. 125 तो हमें पता है, 125 microseconds is the total time which we have. और what is TS? TS is the time which is calculated in microseconds, and this is the time which is required to set up a connection and transfer the sample from the inlet to the outlet. कितना टाइम लगता है एक सैंपल को इस इनलेट से आउटलेट पे जाने के लिए, इस इनलेट से आउटलेट पे जाने के लिए, यहाँ तक. अगर एक को इतना टाइम लगेगा तो 125 में कितने आ सकेंगे? तो 125 divided by TS would give us the switching capacity of the system, which is the number of simultaneous conversations which are supported on a network. और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें याद
यहाँ रखनी है वो ये है कि SA is always inversely proportional to the time required to select and connect an inlet outlet pair. ठीक है। अब हमने ये पढ़ा कि जो सिलेक्शन है ये डायनामिकली कंट्रोल हो रही है, सिंपल फॉर्म है, साइक्लिक मैनर में हम सब चीज़ें कर रहे हैं। हम मॉड्यूलो एन काउंटर 1 काउंट करता है, वो डिकोडर को देता है, डिकोडर उस 1 को डिकोड करता है और फर्स्ट इनलेट कनेक्ट करता है बस के साथ और फर्स्ट आउटलेट भी कनेक्ट करता है बस के साथ। फिर क्लॉक अपडेट करती है मॉड्यूलो एन काउंटर को, वो 2 काउंट करता है, फिर डिकोडर 2 को डिकोड करता है और फिर सेकंड इनलेट को कनेक्ट करता है बस के साथ और सेकंड आउटलेट को भी कनेक्ट करता है बस के साथ। ये पूरा साइकिल ऐसे ही चलता है फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3 till n and then it is repeated again. 1, 2, 3, 4, n minus 1 n in 125 microseconds and then the cycle repeats again from 1 to n in 125 microseconds. This is called as cyclic control. This is called as cyclic control. And one very important thing, there is fixed one-to-one correspondence in between the inlets and the outlets. One-to-one correspondence का क्या मतलब होता है? Inlet 1 is always connected with outlet 1. In general, inlet I is always connected with outlet I. अब अगर ऐसा हो रहा है, that means there is no switching in true sense. एक स्विचिंग एलिमेंट यूज कर रहे हैं और वो सारे कनेक्शंस शेयर कर रहे हैं. देयर इज अ साइक्लिक कंट्रोल व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड बाय द मॉड्यूलो एन काउंटर एंड k to 2 raised to the power k डिकोडर. सारी इनलेट्स और आउटलेट्स को हम स्कैन करेंगे 125 माइक्रोसेकेंड्स में और इनलेट आई हमेशा आउटलेट आई के साथ ही कनेक्ट होगी. तो स्विचिंग इन ट्रू सेंस नहीं है. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू कनेक्ट एनी इनलेट विद एनी आउटलेट. एनी इनलेट विद एनी आउटलेट का क्या मतलब है? अगर हम इनलेट आई को आउटलेट जे के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ नहीं होगा. ऑल्दो द स्विच इज नॉन ब्लॉकिंग इन नेचर. ठीक है. फॉर द वांट ऑफ द रिसोर्सेज द यूजर वुड नॉट बी डिनाइड द कनेक्शन. इट इज नॉन ब्लॉकिंग बट इट लैक्स फुल अवेलेबिलिटी. फुल अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है कि किसी भी इनलेट को किसी भी आउटलेट के साथ हम यहाँ नहीं कनेक्ट कर सकते. ये एक डिसएडवांटेज है और इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए we make either the input side or the output side of the switch memory based. जब हम ऐसा करें तो full availability obtain कर सकते हैं. And how can we do that? We are going to study this in the next configuration in the next lecture. So for the time being, you should have a thorough understanding of what is the basic principle of time division switching and how is this basic principle of time division switching implemented in a general form through a switch. So simple PEM time division switching or simple PCM time division switching, how are we accomplishing, right? So in the next lecture, we'll take up the other configurations which would actually provide full availability. So that's all for the lecture. Thank you.